أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت بہن انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے دی روح دے مطابق قلب اور عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائے، قرآن سے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، دے شر تو بچائیں، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رحم نسل مذہب مل دکھی انسانیت دا بے قرض پلا کرنے والے نواز آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش بت شکن اخلاص اور آزادی پہ کرا بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساری روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان اور دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنا بندہ بنائے۔ نماز عشق فنا فی توحید غرق فی توحید دوام قلبی ذکر و حضور قلبی حق الیقین غیر مرزر ہر شک تو پاک قلبی حق الیقین فنا فی ذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سارے اللہ سارے فی اللہ سارے من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق مولا اور اپنے دیدار دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صدر معزز سامعین آئیے درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں شاناں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 55ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا اس آیت پاک دے اندر یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے۔
और अल्लाह सोने ने इस पाक दे अंदर इरशाद फरमाया कि जो कोई शक नहीं, अल्लाह जल्ला शान और दे फरिश्ते हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ते रहंदे हैं। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दरूद व सलाम पढ़ते रहा करो। इस पाक दे अंदर ये सल्लू दा सीगा जड़ा है वो हमेशगी की दलालत करता है। सल्लू सलवात, सलवात का माना दुआ करना। जदों दी निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी इस तो मुराद आने वाली रहमत बरसाउना। जदों सलवात की निस्बत फरिश्तियां तरफ होगी इस तो मुराद है अल्लाह की बारगाह दुआ रहमत करना कि अल्लाह सोहने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा आने वाली रहमत बरसाउंदा रहे। इस पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूकात नूं ये दस्या अपने अमल के बारे, अपने फरिश्तियां के अमल के बारे। और दरूद पाक दी बरकतां, फजीलतां, फायदियां की तरफ इशारा फरमाया। और अल्लाह सोहने ने अपने इस खासुल खास अमल के करन दे नाल कि खासुल खास अमल है तो खासुल खास लोगों ने बुलाया। तो शुरू है पाक च अल्लाह सोहने ने इस गल नूं इन्ना कह के दस्या कि तुसी हर शक तो पाक गैर मुरजलजल हक़ुल यकीन हासिल कर लो। इस गल का दिलों मन लो कि जो मैं कह रहा सच है। और फिर अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आशिकां नूं बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो। ईमान वाले किहड़े ने? खुद रब सोहने दस्या ईमान वाले किहड़े ने। सूरह बकरा दी, कुरान हकीम दी सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक सोहने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो ने रब सोहने ना जुनून ने टुट के बड़ी वाल हानगी वाल रफ्तगी ना इश्क करदे ने। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, इन्हें ऐसी शिद्दत नाल अल्लाह सोहने नाल प्यार करदे ने कि जिन्हें दुनिया का कोई पैमाना माप नहीं सकता, कोई तराजू तोल नहीं सकता। इसलिए कि ये वो लोग है जिन्होंने उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सिफत दे इश्क दे नूर का छिटा पाता। चूँकि अल्लाह की ज़ात और सिफात की कोई हद नहीं, तो इस नूर का छिटा जिते पिया तो फिर वो इश्क की भी कोई हद नहीं। तो इसलिए अल्लाह सोहने ने अपने ना आशिकां नूं बुलाया। ये वो आशिक ने जिन्हें रोज़े लस्त दुनिया दिखाइया नेमतां के पिछे नहीं से दौड़े, बल्कि दिल की गहराइयां जो जुबान के नाल नाल बुला किया सी और कलम ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नीत ली सी, जिहड़ी हुण तक नीति हुई है और हमेशा नीति रहनी है। क्यों कि इस नमाज इश्क का कोई सलाम नहीं है। ये सिर्फ नीति जाती है और उस तो बाद इस नमाज का कोई इख्तिताम नहीं है। लेकिन नेमत खुश नसीबा नूं मिलती है। इस वास्ते सोहने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया, हरामियां नूं, हरामखोरां नूं, हरामियां दी सोबत बहण वालियां नूं, मुर्दा दिलां नूं, दजालियां नूं, बेहजूरां नूं, बेईमानां नूं, नफ्स शैतान दुनिया के तालबां और पुजारियां नूं, काफरां नूं, मुशरकां नूं, मुनाफिकां नूं, गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां इन्हां दे मनण वालियां नूं और 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां नहीं बुलाया, सच्चे आशिकां नूं बुलाया। सच्चा आशिक वो हुंदा जिहड़ा हर शै अपने माशूक ते कुर्बान करदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब सोहने ते हर शै कुर्बान करते, अल्लाह सोहने ने आप ते हर शै कुर्बान करते और अपने तमाम खजाने चाबियां आप नूं अता फरमातियां। आप नूं मुख्तार कुल बनाता, कासम बनाता कि सोना जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। नूरे हकीकत मुहम्मदिया दे जरिए और उहदी हर लहर दे जरिए ज़ाहिर बातिन च हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाज़िर नाज़र ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा ने पूरी कायनात के उत्ते बहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे ने और आप दे अंडर औलिया कराम अपने अपने इलाकों के अंदर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत तरफ बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देख रहे, जिवें अल्लाह सोहना देख रहा कि वापस पलटे आउण, शक्ल खलक चो निकले आउण, शक्ल मौला ही लग जाना सच्ची तौबा करके। कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम शैतानी प्रोग्रामों की नफ़ी कर देना और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करके दीद मौला की नेमत हासिल करना। और मासो अल्लाह तो कल पर इदा निकलने कोशिश भी कर रहे करने ते मासो अल्लाह का ख्याल ना हो फना और नेस्ती जिमें इदा कमाल हासिल करना। इस वास सुने रब ने मुखलस आशिकां नूं बुला के ये गल कही है कि मैं ला शरीक ज़ात हाँ, मेरी ज़ात सवा च कोई शरीक नहीं। तो जो शरीक मन्ने काफर दायरा इस्लाम चो खारज है, मेरा उहदा कोई ताल्लुक नहीं, वो कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं। अमल वही कबूल होंदे ने जिहड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत और इताअत नाल रास्ता होण। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह सोहणे इरशाद फरमाया कुरान करीम दी सूरह आल इमरान दी 31वीं आयत पाक च, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं ना मुसलमानों को सच्चे आशिकां नूं ये गल कह दिओ कि अगर तुहानूं रूह ईमान की नेमत मिल गई है ना, तुहानूं ईमान की नेमत मिल गई है, रूह ईमान इश्क मौला का कमाल हासिल हो गया, तो फिर मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम से चलो, मेरी मुताबिक करो, मेरे उसवा हसना ते अमल करो और पूरा पूरा अमल करो। दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जिवें कुरान करीम से रब ने दस्सिया कि सारा दीन आप दी ज़ात है, सारा इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान है। कि मेरी हर सुन्नत अमल करो, सिर तो पैरों तक रज़ाए मौला बन जाओ, इरादा इलाही बन जाओ, मर्जी मौला बन जाओ, फेल मौला बन जाओ, तकदीर मौला बन जाओ, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च गुजारो मेरी तरह, ताकि तुहानूं ईमान हकीकी का कमाल यानी दीद मौला की नेमत नसीब हो जाए और तुहाडा इश्क अल्लाह दे यहाँ कबूल हो जाए। युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सुबहान तुहाडे नाल इश्क करेगा। दो तरफा इश्क की गल ही कुछ और है। जिन्हें नेमत मिली उन्होंने पता, जिमें जिहदी कुली नूं अग लगे सेकदा उन्होंने पता, बुखार जिन्हें चढ़िया तपजदा उन्होंने पता, जिसम के किसे हिस्से दर्द है दर्द की कैफियत उन्होंने पता। इहदा मुर्दा दिल इस कैफियत को समझ नहीं सकते, ना ही लफज मुतहम्मल है इहदी कैफियत लिखण दे मामले च। अल्लाह सोहणे ने इसे वास्ते खासुल खास नेमत दरूदी देने वास्ते खासा ने बुलाया और दुरुद पाक वो अजीम शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया है, खजाना है, अब हयात है, इसमें आज़म है, जो दुनिया जहान दे जारी बात नहीं, इनफरादी इज्तमाई तमाम दुखों का दारू है, तमाम मसलों का हल है। तो दुरुद पाक अल्लाह सुनते हाँ वही काबिल कबूल है जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का जिक्र होवे। दुरुद पाक हुआ पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं, जोड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लवे या सुने उत्ते करी दुरुद पाक पढ़ना वाजिब है। दुरुद पाक दी फजीलत बरकतां हदीस के अंदर बेशुमार आई हैं, जिन्होंने मुख्तसर खुलासा है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन्हें मेरे ते करी दुरुद पाक पढ़े तो अल्लाह सोहना उत्ते 10 रहमतां नाज़िल फरमांदा, ਉਹਦੇ 10 दर्जे बुलंद करता है, ਉਹਦੇ नामा माल चो 10 गुनाह मिटा के 10 नेकियां लिखता। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं ਉਹਦਾ दुरूद सलाम जिहड़ा हशर के दिन पुलिस रात तो सनी दिन गुजार देगा, हौज़े कौसर ते ले जाके जामे कौसर पलवाएगा। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च ला के आप दी सोबत और दीदार, आप दी दस्तबोसी कदम बोसी दी नेमत अता फरमाएगा। दुरूद सलाम पढ़ने वाला मोढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढ़े नाल छूएगा। हशर के दिन उन्होंने अर्श के साए थले बिठाया जाएगा, जिस दिन होर कोई साए नहीं होएगा सिवाय अर्श का। उन्हें जन्नत का नूरी ताज पहनाया जाएगा हीरे जवाहरात दा जड़िया, ताकि दूजिया नाम मुमताज़ हो जाए, पता लग जाए कि सुन्नी है और दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा है। दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं मरन तो पहले दुनिया में ही
जन्नत च मकामो महाल दिखाता जाता, जन्नत नूं वसी करता जाता। सच्चे आशिकां दरूद पाक अल्लाह दे प्यारे हबीब खुद सुणदे ने बराह रास्त, ते आमा दा दरूद पाक फरिश्ते लैके जाते हैं। और कसरत दरूद सलाम पढ़ने वाले ਜਿਹੜੇ आम लोग आ उन्होंने ख्वाब च अक्सर आप जियारत कराते रहते, अपने खासा नूं मुराकबे अंदर जियारत कराते रहते, खासुल खासा नूं खुली अखां नाल अपनी जियारत कराते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ते दरूद सलाम पढ़ने वाले अल्लाह रसूल खसूसी मुहब्बत करते हैं और उन्होंने अपने कुरबे खास में जगह ता फरमाते हैं। दरूद सलाम पढ़ के जिन्हें बख्शा जाए अल्लाह सुनो दी बख्शिश फरमांदा। दरूद सलाम पढ़ने वाले आशिकां दी औलिया अल्लाह की जमात लिख लिता जाता, उन्हें इश्क नगर च दाखिल कर दिता जाता, जिथे जाने का एको दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। अगे सफ़र इश्क कतल गाह तरफ जाता, जिथे अल्लाह सोना कतल फरमाता, फिर वह कसास अपने दीदार की सूरज में अता करता। कतल करने तो मुराद दुनिया का कतल नहीं, बल्कि वो अंदरों हर नैगेटिव मनफी एनर्जी में जलाता जाता। खाशात, लज्जा, शहवात, माल मशहूरी, शगले खलक, चोट, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हसद, तकब्बर, नशे, जुए, दिया गलाजता एनर्जियां अंदरों कढ़ दिता जाता और अंदर सारा नूरानी कर दिता जाता। हम सिर तो पैरों तक सरापा ही इश्क मौला इश्क मुस्तफ़ा बनाता जाता और सरापा ही आती अल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर बनाता जाता। और मासो अल्लाह तो इदा कल्ब बेरगबत बेजार हो जाता कि कोशिश भी करे तो मासो अल्लाह का ख्याल नहीं आता। क्यों कि जारो बातों की हर हर लहर के अंदर नूरे इश्क इलाही, नूरे इश्क मुस्तफ़ा, नूरे अमले कुरान सुन्नत, नूरे ईमान रच बस जाता, अंदर गुंजाइश ही नहीं होती और ना काबिल वापसी इरादे ना तरफ अल्लाह की तरफ दौड़ जाता, जिदे बारे कुरान करीम जो रब ने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो दरूद सलाम पढ़ने वाले जिहड़ा जिन्हों भी पढ़ के बख्शेगा मेरा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमांदा। दरूद सलाम पढ़ने वाले दरूद सलाम दी बरकतां दी जान माल औलाद वो मिलने वाले वो उस पड़ोस जारी सारी हो जांदियां ने, उत्थों आफात बलियात को पजाता जाता। दरूद सलाम पढ़ना जन्नत का रस्ता, दरूद सलाम पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो अफजल है और तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा है और गुनाहों का कफारा आ। दरूद सलाम का नूर इंसान के अमलों को पाक करता है, वो गुनाहों को जला देता। हशर के दिन उन्हें दोज़ख तो छुटकारे का जन्नत च दाखिले का परवाना अता करता जाता, वो मथे लिख दिता जाता कि निफाक तो बरी है शख्स। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जब वो अमाल तोले जाएंगे तो वो पलड़े के अंदर लप पर के नेकियां पाइया जाएंगे तो पलड़ा भारी हो जाएगा। कसरत नाल जन्नत के हूरां दतियां जाएगियां तो 3 दिन तक फरिश्ते का गुनाह नहीं लिखते। तो वो उत्ते शफात जी वाजिब हो जाती है। तो दरूद सलाम पढ़ने वाले हर शर को दूर करता जाता, हर खैर की फतुहात दी कामयाब चाबियां अता कर दित्तियां जांदियां। दुश्मनों से हमेशा गालिब रहता, कोई दुश्मनों से गालिब नहीं आ सकता। और ये ऐसा कारोबार है दरूद सलाम जिस नफा ही नफा घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ना सच्चे सुनी होने की अलामत है। और जदों दरूद सलाम पढ़ने वाला फौत होएगा इंतकाल करेगा तो कब्र की मिट्टी वो जिसम और कफन को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो जान बड़ी आसानी ना निकलेगी, जिवें मक्खण चो वाल निकलदा, जान निकलने वेले लज्जत आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। दरूद सलाम पढ़ने वाले दी फरिश्ते जिहड़े हमेशा हिफाजत फरमाउंदे ने। तो दरूद सलाम नाल दियां महफिलां फरिश्ते आ घेर लैंदे, रल के उन्हां नाल दरूद पढ़दे ने। चांदी दे जन्नत दे कागज़ां उत्ते सोने दे जन्नत दे नूरी कलमां नाल दरूद सलाम लिखदे ने और फिर ले जाके अल्लाह रसूल दी बारगाह च पेश करदे ने।
सच्चे आशकां दा दरूद अल्लाह दे प्यारे हबीब बराए रास्त सुनदे ने। आमा दा फरिश्ते लैके जांदे, इस वास्ते उन्हां आमा अंदर नैगेटिव बदबूदार गैर मरी लतीफ जुलमाती एनर्जियां होंदियां जिहदे नाल दरूद पाक लुथड़ जांदा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। दरूद सलाम पढ़ने वाले दी दुआवां अल्लाह सोना अक्सर कबूल फरमाउंदे रहिंदे आ, जिहड़ियां दुनिया विच उहदे वास्ते बेहतर हुंदियां, बाकी दुआवां उहदियां आखिरत वास्ते जमा कर लैंदे ने और उहदा अजर आखिरत नूं अता कीता जांदा। हदीस पाक दे अंदर आ नुज़हतुल मजालिस दे अंदर हदीस पाक लिखी है कि कुछ लोग क़यामत दे दिन कुछ लोगों को क़यामत दे दिन जन्नत दे विच जाने का हुक्म होएगा, लेकिन वो जन्नत का रास्ता भुल जाएंगे। तो सहाबा कराम अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किहड़े लोग ने और क्यों रास्ता भुलणगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये वो लोग होणगे जिन्हां मेरा नाम पाक सुनिया और मेरे ते दरूद पाक नहीं सी पढ़िया दुनिया च। नुज़हतुल मजालिस के अंदर ही हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुसीं मेरे उत्ते जुमे दिन और जुमे की रात नूं दरूद पाक की कसरत करिया करो, क्योंकि बाकी दिनों में फरिश्ते तुहाडा दरूद पहुँचाउंदे ने, मगर जुमे दिन और जुमे की रात जिहड़ा दरूद तुसीं पढ़दे हो तो मैं उहनूं अपनी कन्नां नाल सुनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौले बदी के अंदर हदीस पाक लिखी है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे उत्ते दरूद पाक पढ़ना भुल गया जन्नत का रास्ता तो हट गया। ये वाकया अलामा रागब आसन एक खत दे विच लिख के अपने दोस्त अमीरुद्दीन कदवाई की तरफ वो खत भेजा। दरूद पाक की बरकत का खजीना है करम के अंदर लिखा है वाकया कि दरूद पाक ही इसमें आज़म है। अनवर कदवाई लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब अमीरुद्दीन कदवाई दे जिहड़े इलामा रागब आसन दे नाल बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात सके ते पाकिस्तान मार्जे वजूद तो आने के उत्ते इलामा साहब कलकत्ते के मकान की चौथी मंजिल के उत्ते रहिंदे हुंदे सके ते भारती हुकूमत दे सिपाहियां उन्हां दे गिरफ्तारी के वारंट जारी करते ते पुलिस का सुपरिटेंडेंट जिहड़ा अपने नाल अफसर और सिपाहियां नाल लै के आप गिरफ्तार करने वास्ते आया और मकान नूं घेर लिया। अलामा रागब आसन जो की खबर हुई तो आपने अपने जरूरी कागजात वगैरह चक्के अपनी कच्छ च लाए और कमरे तो बाहर निकलिया दरूद पाक पढ़ना शुरू करता। तो आप सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो अमला जो पुलिस का वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मगर कोई भी आप ना देख सकिया। हालांकि सुपरिटेंडेंट पुलिस जो आप जानता पहचानता सगा। इलामा साहब उतों उतरे बाहर निकले, सवारी से बैठे सीधे हवाई अड्डे ते गए, ढाके का टिकट कराया और हवाई जहाज के जरिए मशरकी पाकिस्तान चले गए। ये दरूद पाक की बरकत सी कि अल्लाह सोहने ने उन्होंने पुलिसियां नूं अन्ना करता। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानूं चाहिए तो दिन रात ज्यादा दरूद सलाम पढ़ के ज्यादा तो ज्यादा
दुनिया आखिरत दियां सारियां कामयाबियां हासिल कर लई है। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मुश्किल इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बड़ा साड़ी रूह नूं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़ूरी खुदा जल्ला शान दामी हाज़री नसीब फरमा। अपने दायमी दीदार दी दौलत उज़मा नेमत कुबरा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां अफलातूनियां दजालियां इस्लाम दुश्मन कुवतां गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूने दजाली बाबियां दे शर तो बचाने दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।